Please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada. Thank you very much for inviting me to your very nice program. I hope I can be of some service to all of you. Hare Krishna, Prabhu. So the first question that has come in, Prabhu, as I just want to check, can everyone see my screen appropriately? Yeah. So the first question, I hope सब लोग मेरी screen पे जो लिखा हुआ है देख पा रहे हैं. मैं पहले प्रश्न को पढ़ रहा हूँ. The first question is the words from the Bhagavad Gita still valid in the current scenario? And which verse are we talking about? Do your karma and do not anticipate or worry about the results. Should we not have an anticipation to reap what we have sowed? I will translate this to Hindi also. जो हमारे भगवत गीता का कथन है कि हमें कर्म करना चाहिए और फल की कामना नहीं करना चाहिए, क्या ये आज के संदर्भ में भी लागू है? और कैसे हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि हमको कर्म के लिए वो इच्छा नहीं हो? So Prabhu, I hope can you take out that verse in chapter 2, text 47 of the Bhagavad Gita, Prabhu? Yes. Okay. Just give me a moment. Prabhu, which verse? Chapter 242. 47. Okay. Yes, Prabhu, I will just try to expand it. The Karmanyevadikaraste verse is what you are referring to. Yes. Yeah. Can everyone see this on my screen? Is it okay? Visible? Should I increase the font? क्या मैं font बढ़ाऊं? आप देख सक रहे हैं ये वर्ड्स को? या प्रभु जी थोड़ा बढ़ा दीजिए. एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा है. अच्छा, ठीक है. मैं अभी दिख रहा है? Yes, Prabhu. I have opened the verse. Okay, can you read that? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि. Can you read the translation? तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में के तुम अधिकारी नहीं हो. तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो. So I see that the verse. तो हम देख रहे. I thought they had another question according to the how to stay calm during difficult situations. But this verse is different. So, Prabhu, do you want me to take out something or do you want me to translate this part? You just translate it. Okay. Can you just repeat once again, Prabhu, just one more time? Your point. You read the translation. মন্দিরটো দেখলা কি সাংঘাতিক মন্দির বনাইছে. Read the verse already? Yes, I read the verse. I read the verse and I read the translation as well. Very good. আমাকে দেখা নাই, আমি দেখিয়েছি. So you see, the verse has been wrongly understood.
It said here you have right to perform your prescribed duty, but you're not entitled to the fruits of action. यहाँ पे जो समझाया गया है कि इस श्लोक को कई बार लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो Plus- समझाया गया है कि आप अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके फल का अधिकार आपको नहीं है। So people have understood it wrongly. They think that it is should you do your karma, but don't anticipate the results. So लोगों ने इसको sorry प्रभु, go ahead. But you have to understand that the result is to be given to Krishna. आपको ये समझना है कि आपके कर्मों का फल भगवान कृष्ण के लिए जाना चाहिए। But everybody is doing work and taking all the results. पर सब लोग कर्म कर रहे हैं और फल खुद के लिए लेना चाहते हैं। So actually work is divided into 3 sections. कर्म को 3 विभागों में बांटा गया है। So those who are not in the conversation, maybe they can mute their mic because it's creating some echo effect. Yeah, let me see if I can. I'll try to mute all, Prabhu. But if I mute all, I think you can unmute yourself, Prabhu. So yeah. Yeah, this is better now because there's no muffling and problems. Yes. Yes. Yes, So Prabhu. therefore, work is divided into 2 categories, 3 categories, कर्म को 3 विभाजनों में बांटा गया है। One is work sanctioned by scripture. पहला है वो कर्म जो शास्त्र के हिसाब से सैंक्शन किया गया है। जो Another one is forbidden work, sinful work that you shouldn't do. दूसरा कर्म है उस तरह का जो आपको नहीं करना चाहिए। And the third one is work where you got no reaction. और तीसरा वो कर्म है जिसका फल, जिसका रिएक्शन आपको नहीं आता है। In other words, it's called akarma. अकर्मा। So karma, akarma and vikarma. So 3 चीजें हैं, कर्मा, अकर्मा और विकर्मा। So normally when you do any kind of work, it is all sinful work. आप रेगुलर कर्म जो करते हैं, ज्यादातर वो कर्म सिंफुल होता है, हानिकारक होता है। So when you do sinful work, जब आप हानिकारक काम करते हैं, then you get sinful results. तो आपको उसके रिजल्ट, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो भी हानिकारक होती है। It says here, you can go to Srimad Bhagavatam. Okay. It's 554. Just a minute, bro. अब हम श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं। 554 चौथे वर्स को हम देखेंगे। प्रभु, is the verse नूनन प्रमत्तः, that verse? Yes. Okay. अभी मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये मैं। Yes, प्रभु। Can read? नूनं प्रमता कुरुते विकर्मा यदीन्द्रिये प्रीतये आप्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोय मस्सन्नपि क्लेशद आस्देह। She read the verse, Prabhu. Translation. जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप
कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता है। So you see how by doing this sinful work, you do sinful activities, then you have to suffer. तो आप देखिए किस तरह से ये जो हानि करने वाले कर्म आप करते हैं और उसके बाद इन पाप कर्मों से आपको सफर करना पड़ता है। You have to first go to hell. पहले आपको नर्क जाना पड़ता है। You can go to Bhagavad Gita 16:16. बढ़िया बढ़िया सब अच्छे। Bhagavad Gita. यस, जस्ट अ मिनट। अब हम भगवद गीता के 16वें अध्याय में जा रहे हैं। नहीं पिएंगे अभी। और इसके 16वें श्लोक पे जाएंगे हम। थोड़ा है क्या लेटर रहता है, क्या करना। नहीं वो हॉल में है तो मैं इधर आप म्यूट कर सकते हैं सब लोग, काइंडली आप म्यूट पे चले जाइए, नहीं तो आपकी बातें बीच बीच में आप म्यूट करूँगी। नहीं मेरा म्यूट करूँगा क्या, तेरा ये म्यूट करूँ। कोई आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहता है अपनी तरफ से ये वर्ड्स, अनेक चित्त विभ्रांत, अगर आपको दिख रहा है तो। हाँ प्रभु, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ प्लीज और वो पढ़िए। शब्दार्थ है मैं प्रभु जी, उसके ऊपर का अनेक चित्त। हाँ उसके हाँ अनेक चित्त उसके ऊपर। हाँ। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगे तुम पतन्ति नरकेषु चलु। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। आगे का पढ़े प्रभु जी। एक मिनट, प्रभु शुड शी रीड द ट्रांसलेशन। हाँ हाँ पढ़िए, आप शब्दार्थ पढ़िए। शब्दार्थ पढ़े नहीं, इस प्रकार अनेक, इस प्रकार अनेक। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। So you think that this is valid or not valid? तो आपको क्या लगता है ये आज के संदर्भ में भी लागू होता है कि नहीं? So if you do sinful work, you're going to go to hell. अगर आप खराब कर्म करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। So what do you think? It is valid or not valid? क्या लगता है फिर आज के संदर्भ में ये लागू होता है कि नहीं? किसी की कोई राय है? Don't see, it doesn't mean hell don't exist. अगर आज के आपको संदर्भ में लागू होता है, आज के संदर्भ में लागू होता है ये। Mataji is saying, Prabhu, she's just responding, saying she thinks yes, it is applicable in today's world as well. So therefore, the question must be very clear whether it is modern world or previous world, whatever world. These things are the reality of life. Just like fire, if I put my hand in fire, whether I put or child put or anybody put, it will burn. Yeah. प्रभु कह रहे हैं कि आज का युग है या पुराना युग है, सब जगह ये अप्लाई करता है। प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप आग भी अंदर अपना हाथ रखेंगे तो चाहे आज हो या पहले हो, चाहे कभी हो, आपका हाथ तो जलेगा ही। So you have to understand that we are living in a world where we are totally neglecting the rules and regulations that are given by God. आज हम जिस तरह से रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज के युग में जितने भी नियम कानून, जितने भी नियम भगवान ने बनाए हैं अच्छे से रहने के लिए, हम उन सबको इग्नोर कर रहे हैं। So as a result, because we don't know, so we don't think it is relevant.
क्योंकि हमें मालूम नहीं है, वो जानकारी नहीं प्राप्त है, इसलिए हमको लगता है कि ये आज के संदर्भ में अप्लाई नहीं करता। Just like in the government, if you break the laws, you will be punished. जैसे आप अपने देश में हैं, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उन नियम को अगर आप भंग करेंगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा। So when you do sinful work, you're going to get sinful reaction. तो अगर आप खराब कर्म करेंगे तो उसका खराब रिएक्शन आपको मिलेगा And you're going to suffer. और आपको तकलीफ होगी। Practically now, nobody knows the rules and regulation of of the Lord. They have forgotten it. आज के संदर्भ में ज्यादातर लोग भूल गए हैं कि भगवान ने अपनी वाणी, अपने लिखन के थ्रू क्या चीजें बताई हैं, क्या नियम कानून बनाए हैं। So when you live ignorantly, then you have to suffer also ignorantly. इसलिए अब अगर आप बिना ज्ञान के, बिना इस ज्ञान के जिएंगे तो फिर आपको वो तकलीफ मिलेगी। So now you see you got this COVID problem. आज देखिए कोविड की जो हालत है। Ultimately, everything is done by the will of the Lord. सभी कुछ भगवान की इच्छा के हिसाब से चलता है, सारी सृष्टि वैसे ही चलती है। Bhagavad Gita 13:8-10. हम एक और वर्स पढ़ेंगे अभी, 8-12. 8 to 12 प्रभु। Yeah, verse. I am on Bhagavad Gita and then you want me to go 13. to which verse? 13th 13th. 13th chapter, 8-12 verse. 13th chapter 8 to 12. Okay, just give me one moment. अब हम 13वें अध्याय में जा रहे हैं भगवत गीता के, और हम श्लोक 8 से 12 उन श्लोकों को देखेंगे। आप होप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। ये चारों वर्स एक साथ हैं, एक जगह पे आ रहे हैं। अमानित्वम से शुरू करके प्रभु, द वर्ड्स व्हिच आर बिगिनिंग विद अमानित्वम, Yes. अदम्भित्वम, that one. Yes. Okay. I'm just trying to make the screen a little bit big so that everyone can see it. सबको दिख रहा है ठीक से? दिख रहा है, सबसे दिख रहा है। Okay. आप में से कोई पढ़ना चाहता है? प्रभु, should we मैं read पढ़ना- all the verses together or? No, you just go to the place where you see Mrityu, Jara Mrityu. It starts with that, जरा मृत्यु। अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। ये जन्म मृत्यु जरा Correct. व्याधि correct. धू। माता जी, अगर आप यहाँ से you want her to read from there onwards, प्रभु? No, just read that line. Jara Okay. Mrityu, Janma Mrityu Okay. Jara Vyadhi. Okay. माता जी, सिर्फ वो वाली लाइन अगर आप पढ़ सकती हैं प्लीज। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषोन दर्शनम। Okay, that's it. आशक- That's it. Huh? You आशक- that's it. enough, That's huh? it, माता जी, एक मिनट होल्ड So कीजिए आप। हाँ, this problem in the material world is 4: birth, death, old age, and disease. हमारे ये जो मटेरियल जीवन है, इसमें 4 चीजें हैं। And जन्म this is the मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा व्याधि, which means in English or birth, death, old age and disease. so this human body that we got, ये जो हमको मानव शरीर मिला है, and this body has the solution for this problem. ये जो मानव शरीर है, इस समस्या का समाधान है। Can you go to 11:20-14? 11:20-14। अब हम भागवत के एक श्लोक को देखेंगे। प्रभु, 11:12-14 you said, right? 11:20-14. 11:20-14, okay. अब हम श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं। प्रभु, द श्लोक एतत् विद्वान पुरा मृत्यो, that one? Yes. Yes. You want someone to read, प्रभु? Anyone can read. Yeah. कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं क्या? बिल्कुल पढ़िए।
एतदिन्द्रापुरा मृत्योर्भवाय घटेत सह अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा नृत्यं व्यर्थ सिद्धिदम्। Translation. ट्रांसलेशन शब्दार्थ पढ़ सकती हैं आप, ये नीचे वाला यह जानते हाँ हुए वहां से। हाँ, यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मृत है तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। विद्वान व्यक्ति को मूर्खता बस मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। So this is the what we say the most important thing to do with this human body. ये मानव शरीर के साथ सबसे जरूरी चीज है जिसको हमने वो फॉलो करना है। How to prepare for death? कैसे हम मृत्यु के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। But now death is all everywhere in the whole part of India. Everybody is dying here and there. बट आज की स्थिति में आप देखो, आपके चारों ओर आप डेथ देख सक रहे हो। But they don't know how to die. राइट, बट उनको उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार करना है ये लोगों को पता नहीं है। So everybody is frightened. इसलिए सब लोग डरे हुए हैं। It doesn't mean that you will cry, the death will go away. No. आप अगर हम और आप बैठ के रोएं, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि मृत्यु भाग जाएगी। So this information is there in only India. So ये जो ज्ञान है ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। Only India has this information. सिर्फ हिंदुस्तान में ये इंफॉर्मेशन है। प्रभु, you mean that this is through the Indian scriptures? Is that what you mean? Yes. Yeah. So प्रभु ये कह रहे हैं कि ये सारा ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, मगर हम पढ़ नहीं सक रहे हैं उसको। Nobody else in the world have this knowledge how to escape death. किसी के पास दुनिया में और किसी के पास ये सब ज्ञान तो है नहीं कि कैसे हम मृत्यु से बच सकते हैं। See, can you go to 4:9 Bhagavad Gita? अब हम भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे। सॉरी, चैप्टर 4 में जाएंगे हम, चौथे अध्याय में, और उसका 9वां श्लोक पढ़ेंगे। और आप देखिए, ये जो भी प्रभु समझा रहे हैं, whatever प्रभु is trying to explain, everything is through the scriptures. So आप सब scriptures में ही आप देख रहे हैं। You got it? 4:9. Just a minute, प्रभु, almost there. Got Yes. it? जन्म कर्म चमे दिव्यम। Yeah, correct. Yes. Chant, please chant. जन्म कर्म च मे दिव्यम योवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बहुत अच्छे प्रभु। Do you want them to read the translation? Yeah, the translation. आप ट्रांसलेशन हे पढ़िए। अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। So you see, Haribol. the moment you understand about Krishna, his appearance and pastimes, then you don't have to take birth again. जैसे ही आप देखिए, इसका मतलब आप भगवान कृष्ण के स्वरूप को जानते हैं और उसको एक बार आप जान लेते हैं तो आपको फिर पुनर्जन्म के उससे आप मुक्त हो सकते हैं, फिर आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है। Because the soul has taken birth, it is definitely going to die. जो हमारा जो शरीर है, एक बार हमने जन्म लिया है, वो तो बिल्कुल मृत्यु को प्राप्त होगा, मगर हमारी आत्मा तो अमर रहेगी। One who has taken birth, death is sure. जिसने जन्म लिया है, मृत्यु तो होनी ही है। And one who has died, birth is also certain. और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होना भी सर्टेन है।
So therefore, Krishna is telling, now you die one time and you don't come back anymore and die again and again and again. तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है, अगर आप मेरी तरफ ध्यान देते हो तो आपको ये बार बार मरने और जीने इसके साइकिल में आपको पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that knowledge Krishna is giving. वो ज्ञान कृष्ण खुद दे रहे हैं भगवत गीता में। So if you know Krishna, then you don't have to come back again and suffer this birth, death, old age and disease. तो अगर आप कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो जो चार चीजें हमने देखी, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ और डिजीज, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। So this is the problem. Instead of finding out this cure, we are going to do so many things to think that we will be in this body forever and forever and forever. This is stupidity. So ये जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसकी जगह हम और सब सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Because nobody can escape death. That's not possible. कोई मृत्यु से बच तो नहीं सकता, वो तो असंभव है। 3:25:39. 3:25:39। Yeah. हम फिर से भागवतम में जाएंगे। अब श्रीमद् भागवतम में प्रभु 3, which one chapter? 3? 29. 29. Okay. No, sorry, chapter 25. 3:25. Okay. Just a minute. 3:25:39. 3:25:39. Okay. Just a moment. Prabhu imam lokam, that verse? Yes, 3:25:39:40. Huh? Two words together. Yeah. Visrijya sarvan imam. Okay. Yes, Okay. yes. Okay. मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ प्रभु ताकि सबको You दिख can read जाए। the translation. No? The verses go to the हाँ. translation. हम शब्दार्थ पढ़ेंगे इसका। हाँ, just एक Yes. minute. I'll just try to. I think I have to reduce the screen a little bit. Now everyone can read. कोई पढ़ना चाहता है? ये इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, शांति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं इसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हरि बोल। Next verse. The 41st one, Prabhu. Yeah, 41st. Just read the translation. हाँ। यदि कोई मुझको छोड़कर अन्य की शरण ग्रहण करता है तो वो जन्म तथा मृत्यु के विकट भय से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सृष्टि का आदि स्रोत तथा समस्त आत्माओं का भी परमात्मा हूँ। हरि बोल। See, so if you want to escape this problem, the only thing we have to do is take shelter of the Lord. इसलिए आप देख रहे हैं ये जो मृत्यु और जन्म का जो रिपीटेड साइकिल है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम भगवान कृष्ण की शरण में आए। That's all. बस उतना ही है। You go to 12:3:44. 12:3:44. Bhagavatam. भागवतम 12, huh? 12. Yes, 12th canto, right, Prabhu? Yeah, 12:3:44. Yeah. Yanna Madheyam, Prabhu, Yes, that verse? Yes, yes. Just give me one moment. I will just increase the screen size. Go to the translation, huh? Translation, okay. हम इसका शब्दार्थ देखेंगे। कोई और पढ़ना चाहता है? कोई और बोलना चाहता है? कोई और? प्रभु, माता जी। Can you read this? मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे उसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है।
और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। See? पूजा नहीं करेंगे. That's the word. Yes. So Prabhu is saying, Prabhu is also speaking Hindi. So can you imagine now what to do? Everybody is crying. What to do? No solution. तो आप समझ सकते हैं अभी सब लोग रो रहे हैं ये सोच के कि समस्या का समाधान नहीं है, जबकि शास्त्रों में समाधान दिए हैं. Either you die now or you die 100 years. Die is going to die anyway. या तो आप अभी मृत्यु को प्राप्त हो या 100 साल के बाद प्राप्त हो, वो प्राप्ति कभी ना कभी तो होनी है. But if you take shelter of the Lord, you're only going to die once and you're not going to come back. You're going to go to Vaikuntha where there's no birth, death, old age and disease. अगर आप भगवान की शरण में आएंगे, परमात्मा की शरण में आएंगे, तो सिर्फ एक ही बार मृत्यु होगी. इसके बाद आप वैकुंठ जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वहां All पे you, बार बार मृत्यु और जन्म के साइकिल में आप नहीं फंसना होगा आपको. and all the investment is to open the mouth and say Hare Krishna. कृष्णा. That's it. सिर्फ इतना ही करना है आपको, अपनी जबान को खोल के हरे कृष्णा उनका नाम लेना But है. no, they don't want to do this. पर फिर भी लोग करना नहीं चाहते. So they want to do all kind of karma. सब तरह के कर्म करना चाहते हैं. And why? If you do karma, you have to suffer. अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा आपको. And then you have to come back here and take the 84 lakhs of bodies, species. जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में आपको जन्म और मृत्यु के संकट में फंसे रहना होगा. What guarantee is that you will come back as human being again? क्या गारंटी है कि इस जन्म के बाद आपको मानव शरीर ही मिलेगा? You can come back as a monkey, or you can come back as a dog, or you can come back as a cockroach. You can come back in any species. आप कोई जीव जंतु के रूप में भी वापस आ सकते हैं. So, is this intelligence? क्या ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें? क्या ये इंटेलिजेंट होना है? So instead of worrying about this, you're worrying about some smaller thing. What is this knowledge? इसलिए आप ये छोटी छोटी चीजों के बारे में हम फिक्र कर रहे हैं, तो क्या फायदा उससे? Therefore, one should be more fearful that death is coming. I should prepare myself. इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि ठीक है, ये चीज हो सकती है, मगर अब तैयार करके रखो अपने आप को. So what to do? So you have to become a devotee of Krishna. तो इसलिए आपको कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा. Yes. So how to become a devotee of Krishna? That's also a question. We have to go and learn from another devotee. Otherwise, you won't know how to do, what to do, not to do, all these things. अब कैसे हमें कृष्ण की भक्ति को पाना है, ये आप बाकी साधु संघ से सीख सकते हैं. साधु संघ मतलब नॉर्मल, जैसे हमारे लोग हैं, डिवोटीज हैं, उनके साथ आप समय बिताओगे, सीखोगे, तो आपको पता चलेगा. Therefore, we must go to a guru. इसलिए सबसे जरूरी है एक गुरु का होना आपकी जिंदगी में. Then when we learn how to pray, how to love Krishna, then yes, our life is successful. फिर जब हम गुरु की छत्र छाया में सीखते हैं कि भगवान कृष्ण को प्रेम कैसे किया जाए, फिर आपका जीवन सफल होना ही है. Not only after we die only we successful. In this life also we will be successful. आपको मृत्यु तक इंतजार भी नहीं करना होगा, आपको जीते जी सफलता मिलेगी. Krishna says in the Bhagavad Gita that my devotee, I protect my devotee. 931. कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं अपने डिवोटीज को प्रोटेक्ट करता हूँ. Should I go to that verse, प्रभु? Yeah, 931. अब हम फिर से भगवत गीता के उस श्लोक में जाएंगे और देखेंगे कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं अपने भक्तों के बारे में. हम 9वें अध्याय में जा रहे हैं और हम 31वां श्लोक जो है वो पढ़ेंगे अभी.
Prabhu, Shipram Bhavati Dharmatma. Yes, That verse. Yeah. Chipram bhavanti dharmatma satsvat shanti nigacchate kauntaya pratijanehi ma bhakta pranashate. So read the translation. कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है? वह Adlash? तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हरि बोल. Chemi bhakta vinash nahi hoga, right? That's what he says, right? Yes. Ma bhakta vinasha, no vinasha. विनाश Yes. नहीं होता. Vinasha nahi hota, correct? Yes. So this is the best insurance. You can buy any insurance, but this is the best. आप कोई भी इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, मगर ये इंश्योरेंस देखिए, ये सबसे अच्छा है. See how Krishna protected Arjuna. देखिए कैसे कृष्ण जी ने अर्जुन की रक्षा की. So this is examples how we learn how to have faith, you know. ये एक उदाहरण है कि कैसे हमको विश्वास रखना है भगवान के ऊपर. Krishna is not unkind, he is very kind. कृष्ण बहुत काइंड है, बहुत करुणामयी है कृष्ण. But provided you surrender to him. बट वो तभी होता है जब अब आप अपना जीवन उनको न्यौछावर करें, आप सरेंडर करें. And we don't want to surrender and do your own thing, then yes, why COVID? You will get cancer, you will get heart attack, you will get so many things. अगर आप अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते, न्यौछावर नहीं करना चाहते हैं, तो मुश्किलें आएंगी. And then suffer again. Next birth, we don't know what we're going to get. अगले जन्म में क्या स्वरूप आप लेके आएंगे वो तो पता नहीं है आपको. So what do you think? This is relevant, not relevant? तो क्या लगता है आज के दौर में भी? आई नो एक माता जी ने तो कहा क्लियरली कि हाँ नहीं, ये आज के युग में भी ये अप्लाई करता है. तो आई होप दैट क्वेश्चन इज आंसर्ड नाउ. Yes. हाँ ना, थोड़ा जवाब दीजिए तो प्रभु को पता चलेगा कि. यस प्रभु. हाँ जी. So what is your choice? You want to surrender or you don't want to surrender? आपके पास चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रभु की शरण में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं. हरि बोल. Very good. For today, how to surrender? You have to start chanting Hare Krishna, huh? कैसे शरण में आना है? आप चैंटिंग शुरू कीजिए, हरे कृष्णा. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे हरे. Very good. बहुत अच्छे. So moment you chant, then Krishna, even Yamaraj will not come here, to you. आप जैसे ही चैंटिंग शुरू करेंगे, यमराज भी नहीं आएंगे आपके पास. You get best vaccination. This is the best vaccination. ये सबसे अच्छा वैक्सीनेशन है, हरि का नाम लेना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. इससे बढ़िया वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा आपको. Don't you think so? आपको नहीं लगता ऐसा? यस प्रभु. हमें तो पूरा विश्वास है. Very good. Very good. So what is the next question? Yes, Prabhu. I'll maybe just read out all the questions along with that, because now I'm looking at the time and then it's easier for you to maybe combine some questions. So the next question was, for the remaining part of my life, what should I do to work without seeking the results, which means nishkam karma. Yeah, that is already okay. Yes. One interesting question is how to be content with what we have. As humans, our aspirations and goals keep on increasing. So how to control that urge in order to be content with what we have? हम कैसे अपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखें? The next question is, while death is a truth for every human being, it is always a painful experience when we lose our loved ones. What is the right way to offer our respect to those departed souls when circumstances do not allow us to be physically present during the rites? I think it is more to do with the COVID time. So I'll just read out the questions, Prabhu. No, it's okay. It's okay. First, we will go to this one: how to be content with what we have. Okay.
All right. So in the Bhagavad Gita again, भगवत गीता में chapter 3. चैप्टर 3, ओके. So all this is based on lust, you know. ये सब कुछ काम और वासना पे बेस्ड है. So lust, वासना, you can go to 339. 339. Okay, Prabhu, just give me a moment. अब हम तीसरे अध्याय में हैं और हम 39वें श्लोक में जा रहे हैं. आवृतम ज्ञानमेतम प्रभु, मेतेन, that one, Prabhu? Yeah. Yeah, just let me increase the font a little bit. Yes, Prabhu, I am there on the shlok. Yeah, please read. किसी को इच्छा है इस पढ़ने की? प्रकार नहीं, आप ज्ञानमय पहले श्लोक जीवन- पढ़िए. श्लोक पढ़िए प्रभु. आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च. बहुत अच्छा. इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है. हरि बोल. Read the purport. इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे माता जी, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं. हाँ. अभी होपफुली आपको दिख रहा है, आप बोलिएगा तो मैं स्क्रीन और नीचे कर दूंगा. पढ़िए नहीं, माता. ठीक पढ़ रहे हैं. मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती. जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है. अतः इस जगत को मैथुन आगार का विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है. एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है. इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं. इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना. अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है. इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है. हरि बोल. हरि बोल. So this is the problem. ये समस्या है. Everybody is lusting over material things. सब लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं. And because they are lusting over this material thing, therefore the lust cannot be extinguished. और चूंकि ये इसी के पीछे भाग रहे हैं, जैसे ये अग्नि का एग्जाम्पल दिया है, ये कभी भी बुझती नहीं है, खत्म नहीं होती. So the more you want, the more you have, the more you want. जितना आपको मिलता है, आप उसके हिसाब से और चाहते हो मिले. So how to overcome this karma? कैसे इससे बचा जाए, इस काम को कैसे कंट्रोल किया जाए, जो हमारा सवाल था. Unless karma is coming from rajagun. अनलेस काम जो है वो रजगुण से आ रहा है तो अलग बात है. So we must go above this rajagun and come to the sattva gun. रजगुण से ऊपर उठ के हमको सत्व गुण पे आना पड़ेगा. प्रभु, maybe if you want to explain the three gunas, I think that will be easier for them to. Can you go to the verse back to Bhagavad Gita? Huh? You are Okay, in Prabhu. 39, right? You are in 39, right? You go to 37. I think it's 34. The same chapter, Prabhu.
Yeah, third Okay, chapter. okay. Third chapter, 34. Okay, just give me a moment. Yes, Prabhu, I am on 34. No, Indriyasya. I don't think This so. one? That's the verse. Give me a Okay. minute, huh? Yeah, Prabhu, no problems. 37, huh? You got in 37? Go to 37. Yes, Prabhu. Kam esh, krodh esh, that one? Yes, Rajoguna. yes, Okay. yes, Yes. yes. Can you read that? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरिणम। ट्रांसलेशन प्रभु। Yes, please. श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरि बोल। हरि बोल। So this is the problem, Krishna says. So ये प्रॉब्लम है जो कृष्ण जी बता रहे हैं खुद। Huh? Our problem is the enemy called Kama and Krodha. हमारा शत्रु है काम और क्रोध। So this material world, this is our enemy and we must learn how to overcome this enemy. ये भौतिक दुनिया में ये जो दो चीजें हैं ये हमारी शत्रु है और इसको हमको संयम में रखना सबसे जरूरी है। So Krishna says in the Bhagavad Gita 7:14. So कृष्ण 7वें अध्याय 4थे श्लोक में कहते हैं, should I go there, प्रभु? Yes. Okay, just give me a moment. 7:14, right, प्रभु? Correct. Yeah, just a moment. Devi Yesha Gunmai, that verse, Prabhu. Devi Esha Gunamai. You want to chant Devaki? Hare Krishna Prabhu. Yes, I will try to chant. Devi Esha Gunamai Mama Maya Duratyaya Mameva Ye Prapadyante Maya Metam Taranti Te. Translation. प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरि बोल। So if you want to overcome this calm crowd, So अगर आपको ये काम और क्रोध से परे जाना है, इसको संयम में रखना है, the only way is to surrender to Krishna. सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप कृष्ण जी के शरण में आए। So once you surrender to Krishna, then very easily you can overcome these desires. आप एक बार कृष्ण जी के शरण में आते हैं तो बहुत जल्दी आप इन चीजों पे संयम कर सकते हैं। Otherwise, you cannot surrender. You don't surrender, then you cannot overcome these things. अगर आप कृष्ण जी के प्रति सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है। Can you go to 244 Bhagavad Gita? यस प्रभु। अब हम दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। चौवालीसवें श्लोक में। भोगेश्वर प्रशक्तानां तायापहर्तसे कशम् व्यवसायत्मिका बुद्धि Yeah, just hold on. Let me just open. विदित्यते. Yeah, let me just open it so that Like that's everyone so, yeah. everyone can see it together. Yeah. Chant again. भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापायत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधुना विधीयते। हरि बोल। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक
आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। हरि बोल। नहीं होता, हाँ? Does not come. Yes. If you want to enjoy this book, this calm will come. अगर आप ये भोग सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो काम आएगा। So when you go into this calm, if you don't surrender to Krishna, then you cannot overcome it at all. आप इस काम के जाल में फंसते हैं। अगर आप कृष्ण जी को प्रति सरेंडर नहीं करेंगे तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। So how to be contented with life? Unless you get Krishna, you cannot overcome this problem. तो जीवन से संतुष्टि कैसे मिले? जब तक आप भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं होंगे तो नहीं हो सकता। Can you go to 266? Yes, Prabhu. Sorry, I was there only. 266. Okay. नास्ति बुद्धि। Yes. Prabhu? Yes. Read the translation. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। Read the translation. जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हरि बोल। But that doesn't mean that the devotee should live like beggars, yeah? इसका मतलब ये नहीं कि जो भी डिवोटी हैं वो बिल्कुल एकदम भिखारी की तरह रहें। Go to 922. अनन्या चिंतयन्तः। That words, Prabhu? Yep, read. Please read. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरि बोल। So you see, if you become a devotee, Krishna gives what you lack and preserve what you have. तो अगर आप कृष्ण भक्त बनते हैं तो जो आपके पास नहीं है वो कृष्ण देते हैं और जो आपके पास है उसको संजो के रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। But on the other hand, you are trying to accumulate more and more and more. In the process, you are becoming more and more entangled. और इसके विपरीत आप अगर इकट्ठा करने लगते हैं और उससे और इकट्ठा करते हैं तो फिर आप उस मोह से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उस जाल में फंसते जाते हैं आप। And the more you try to get, the more unhappiness. और जितना आप और ज्यादा पाना चाहते हैं फिर आपको उतना दुख होता है। And of course, we all know when you get more money, you will do more sinful activities. आपके पास ज्यादा पैसा आने लगे तो आप ज्यादा गलत काम करने लगते हो। Yes. हाँ ना? आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं? And then, we got 3 ways, 3 gates to hell: काम, क्रोध and लोभ. 9, go to 16, I think 21. 16, 21. ओके प्रभु। हम 16वें अध्याय में जा रहे हैं और 21वें श्लोक में जाएंगे। Prabhu, the trividham narakasyedam, that one. Yeah, I'll just increase the font. Trividham dvaram nashanam atmanah kamah krodha तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। So more and more काम, where you go, lobh, greed.
Huh? Where you तो go? आप देख सकते हैं कि आप ज्यादा काम क्रोध लाभ से कहाँ जाते हैं आप। Hmm? You understand? समझ सक रहे हैं आप? So you want to be satisfied. Then Krishna says, you offer me. Can you go to 927? Yeah, Prabhu, I just want to take a pause. I see 2 participants have raised their hands. क्या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बोलना चाहते हैं, कोई? No, they are asking questions, I think. Prabhu, what is the lobe? No. I don't want to take questions now. I'm trying to explain this point. Okay. Prabhu, we'll just park your question. आप 1 मिनट के लिए आप रुके रहें। ये इस फ्लो को खत्म करेंगे, फिर प्रभु आपके क्वेश्चंस लेंगे। Yes, प्रभु, sorry. So greed, lobe is greed. Understand? The more you have, the more you want to have. लोभ जितना आप चाहते हो उससे वो बढ़ता जाता है। The more you have, the more you want. Correct. And you cannot keep it also. और उसको आप रख भी नहीं सकते। So more money you have, so many people want to get it out of your hands. आपके पास पैसा आता है, आपके पास आया और लोग आपसे लेना चाहते हैं। You go to 927. Yes, प्रभु। अब हम 9वें अध्याय में 27वें श्लोक पे जा रहे हैं। यत करोषि प्रभु, that श्लोक? Yes. Just a moment. यत करोषि Yes, माता जी, बोलिए। हाँ, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तद्ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। हरि बोल। हरि बोल। तात्पर्य? हाँ, 1 मिनट, मैं जस्ट स्क्रीन पे नीचे जा रहा हूँ जी। हाँ माता जी, पढ़िए। हे कुंती पुत्र। तात्पर्य, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि बोल। हरि बोल। So when you offer the thing to Krishna, yes. So जब आप कृष्ण जी को समर्पित करते हैं, then yes, Krishna will help you. फिर कृष्ण जी आपकी मदद जरूर करेंगे। So once you go to Krishna, all your काम, your क्रोध, your लोभ, all get settled, you know. जब आप कृष्ण जी के पास जाते हैं तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है। But if you don't go to Krishna, then there's no way you can overcome this. अगर आप कृष्ण जी के पास नहीं जाते हैं उनकी शरण में, तो और कोई तरीका नहीं है इससे बाहर आने का। And then you go to hell. फिर आप नरक के द्वार की तरफ जाते हैं। Yes. हाँ ना? Yes. हाँ प्रभु। So who asked that question? Are they happy with the answer? माता जी, प्रभु, आपका सवाल जवाब मिला आपको? कुछ कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं? जी प्रभु, मिल गया जवाब। So you want to have more karma? आप और मार काम ले लो। Yeah. Please bear if some of these answers may appear direct to you, but these are all scriptures. So Prabhu is just trying to give that message based on what has been read, and which unfortunately is not in our minds for most of us. No, but the main thing is that unless you get it direct, nobody will change in the heart. जब तक आपको सीधे ये नहीं मिलेगा, तब तक this sweet talks never help anybody. ये प्यार से बातें करना किसी को, उससे किसी को लाभ नहीं मिलेगा। Now COVID is very sweet. अभी क्या कोविड बहुत स्वीट लग रहा है आपको? Yes. It's very challenging. So disease is very strong means medicine must be strong, no? Absolutely. Yes. अगर डिजीज स्ट्रॉन्ग है तो उसका
उसके लिए दवाई भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। Yes. हाँ ना? yes. Okay, we go to the next question. Yes. प्रभु Yes. प्रभु यदि हम किसी को 1 रुपया भी देते हैं तो कृष्णाय अर्पणमस्तु करके देना चाहिए। Prabhu, she's asking that if we give even 1 rupee to someone or $1 to someone, should we give it after offering to Krishna? Yes, but if you give it 1 rupee to the person and if he goes buy some bidi, you also going to get in trouble. हाँ, माता जी वो ये कह रहे हैं कि आप किसी को अगर 1 रुपए देती हैं और वो आदमी वो 1 रुपए का दुरुपयोग करता है, फॉर एग्जाम्पल जाके उससे कुछ गलत वस्तु खरीदता है, तो उसका फिर भाव आपको भी पड़ेगा। But if you give to the devotees, to give to Krishna, then yes, you are free. अगर आप किसी भक्त को देते हैं, कृष्ण भक्त को, जो कि उसको कृष्णा की सर्विस में यूज करता है, तो आपको उसका फिर सही लाभ मिलता है। पर हमको पता कैसे चलेगा भी किसी जरूरतमंद को दिया हमने 10 रुपया दिया या कुछ दिया उसको, कि जरूरतमंद है, उसको कुछ खाने की इच्छा है, कुछ भूखा है। She's asking how does she know whether this person is the appropriate one, whether he is hungry, not hungry. Do you want to park that question for some time, Prabhu, or do you want to answer now? You tell her, you go to the market, if you want to buy some potatoes, you don't go to the jewelry shop, no? प्रभु कह रहे हैं कि अगर आपको बाजार से आलू खरीदना है तो आप गहने की दुकान में तो नहीं जाते हैं। प्रभु उदाहरण देके आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। So you must know something, you know. You can't be so stupid. तो प्रभु कह रहे हैं कि थोड़ी तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी अगर आप अपना धर्म भी बांट रहे हैं तो। ओके। If you don't know, you ask us, give us the money, we will use it. प्रभु कह रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप वो धन हमको दे सकते हैं, हम यूज कर लेंगे। That is just a little bit on the lighter side. You know, we are not here to ask for funds. This is a class to impart knowledge. प्रभु मेरा सवाल धन से ही नहीं था, जैसे किसी को अन्न दिया है, अन्न का दान किया है, कोई भी चीज का दान किया, ऐसा पैसे का धन से नहीं ऐसा। हाँ, तो आपने माता जी देखा उसमें जो उन्होंने बताया कि कोई भी दान आप कर रहे हो तो वो दान आप कृष्ण को करके करो, right? So Prabhu, Mataji was asking that it's not the question of money, even if I want to offer food or some other kind of charities. You must learn how to do it from the devotees. Yeah. So Mataji वो कह रहे हैं कि आप जो भक्त हैं उनसे आप सीख सकते हैं। In fact, Prabhu, we can have a detailed discussion on how to give charity. You can maybe just refer which chapter has the details in the Bhagavad Gita on what charity is the mode of goodness, what is charity in the mode of passion, what is charity in... we first finish all these questions. Yes, first way. हाँ, माता जी आप थोड़ा इंतजार करें, पहले हम इन प्रश्नों का जवाब देंगे, फिर हम आपको बता सकते हैं कि किस अध्याय में लिखा हुआ है कि चैरिटी भी आप कैसे कर सकते हो सत्व गुण में। ओके। Yeah. In fact, it's best that she buys the Bhagavad Gita and read, you know. प्रभु कह रहे हैं सबसे अच्छा आपके लिए होगा कि आप भगवत गीता एज इट इज जो श्रीला प्रभुपाद की है वो आप खरीद के पढ़ें, तो वो सबसे ज्यादा लाभदायी होगा। I cannot cover everything in this 2 hours, you know. हाँ, सब कुछ 2 घंटे में अभी कवर नहीं हो सकता, बट ठीक है, हम अगले हफ्ते भी क्लास करेंगे। Yes, प्रभु, I said we'll have a class next week as well, so we'll come back to we will stay on course with the questions. No, but in the meantime, she can buy the book and read. No, Okay, Prabhu. Hari bol. Hare Krishna, Prabhu. Yes. Yeah, I think by the end of the class we can also mention about the Bhagavad Gita, the distribution, Prabhu. So if anybody is interested to buy, we can mention that, Prabhu. They can read meanwhile. Yeah, very good. Yes. Prabhu, आप अनुवाद कर सकते हैं? हाँ, अगर आप अक्षय, why don't you do the translation yourself, Akshay? Yeah. तो हमारे भक्त हैं जिनसे आप भगवत गीता को खरीद सकते हैं और भगवत गीता अपने घर पे पढ़ सकते हैं। आपके घर पे आपको डिलीवर कर दी जाएगी और आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं उसके बाद। तो मैं क्लास के एंड में चैट बॉक्स में भी लिख दूंगा कि कहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है भगवत गीता के लिए, और नंबर भी दूंगा ताकि आप उस पर सीधा कॉल करके बात कर सकते हैं कि मुझे भगवत गीता चाहिए, और भगवत गीता हिंदी में या अंग्रेजी में आपके घर पर पहुंच जाएगी। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। Yeah. So Prabhu, we already finished, I think, questions on this page. Maybe I just want to quickly go ahead. No, the number 4. Number 4. Okay.
While death is the truth for every human being, it is always a painful experience when we lose our loved ones. What is the right way to offer our respect to those departed souls when circumstances do not allow us to be physically present during the last rites? आज के दौर में जो आप देख रहे हैं आपके साथ हो रहा है वहाँ कंट्री में, कई बार हम अपने लव्ड वंस को प्रॉपरली लास्ट राइट्स भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या तरीका है, कैसे उनको हम रिस्पेक्ट ऑफर कर सकते हैं? यस प्रभु, ओवर टू यू। Srimad Bhagavatam 7:10-18. 7:10-18, yes. Can you read just one verse before that? 7, 10, 15, 17. 15, 16, 15 and 17, Prabhu. Yeah, it's a whole thing there. Yes, yes, together it is there. So just read the translation. Na? हाँ, इसका शब्दार्थ हम पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, I'll just confirm the words, Prabhu. Yeah. You read the thing now. Yeah. प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले थे। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। हरि बोल। Can you read the next verse? Yes, Prabhu. Translation, ना? Yeah. भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं, क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। हरि बोल। Can you read the next verse? जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। So if you chant Hare Krishna, अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, so the right that you can do for your departed soul, so इसलिए जो आपके डिपार्टेड सोल हैं उनके लिए जो क्रिया कर्म करते हैं, becomes properly done. वो सही तरह से हो जाता है महामंत्र के उच्चारण से। Not to speak about your departed one, 21 generations all get delivered. आप देखो, सिर्फ जो गया वो नहीं, आपके 21 पुश्तों का उद्धार होता है। If you become a bhakta, so many people are getting the proper, what we say, benefit. अगर आप एक भक्त हो जाते हो तो आप देखो कितने लोगों को लाभ मिलता है। Even if a person is going to hell, अगर कोई नरक में भी जा रहा हो, if you chant Hare Krishna, then even if he is going to hell also, he will go to the spiritual world. अगर आप चैंट करेंगे हरे कृष्णा, तो कोई नरक में जाने वाला हो वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाएगा, वैकुंठ में जा सकता है। So now you are stuck, you cannot do the ras rite, this and that. But if you chant Hare Krishna, everything is settled. तो अभी के दौर में आप अच्छी तरह से क्रिया कर्म भी नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन आप हरे कृष्ण का महामंत्र जाप करेंगे तो वो ही बेनिफिट उसको मिलेगा। Yeah, see, Krishna is saying here, 21 generations get benefited because you are a devotee. देखिए, यहाँ श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि 21 पुश्तों का लाभ होता है अगर आप कृष्ण भक्त हैं। Is it a deal or not? ये अच्छा आपके लिए अच्छी शर्त है या नहीं है? ये शर्त आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते? Hello. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. You don't want to deliver your dependents.
हाँ, आप अपने जो कुल के लोग हैं उनका उद्धार करना नहीं चाहते। You don't want, huh? प्रभु पूछ रहे हैं, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? You rather see him go to hell, right? क्या आप चाहते हैं कि आपके पुरख भी नरक में जाए? What? नहीं चाहते कि Huh? उधार सबका उधार What? No, they are saying they Prabhu, want this everyone this to is get also benefit. applicable not just for family, but maybe your friend circle. Because now when we look at our surroundings, it's not. If you know this message, this secret, you can tell it to everybody, no? अगर आपको ये रहस्य मालूम है तो आप सबको बता सकते हैं, सबको Not इस departed soul. Sorry, Roop, I think your voice is breaking. If you can repeat. Yeah. So you teach people how to chant, and their families, their fathers, all get delivered. So Roop, प्रभु बता रहे हैं कि आप उनको सिखाइए, आपके दोस्त हैं, तो अगर जब वो भी करेंगे तो उनके पुश्तों को भी फायदा होगा। Yes. हाँ। Yeah. Thank you. Thank you, Prabhu. Yeah. Okay, that answers the question in that one. Yes, Prabhu. The So, best riot you can do for your departed soul is to chant Hare Krishna. सबसे अच्छा क्रियाकर्म जो आप कर सकते हैं, जो चले गए उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। Next question. Yes, Prabhu. I'll go to the next page. I think the next questions are more around COVID. How to stay calm during difficult situations. Example, in this pandemic, someone tested positive, tension and anxiety increases more rapidly than the virus. People say you have to accept the fact, but it is not easy, and how one should build the quality of accepting the circumstances and reality around us. That is one question. I think the related question. Yes, sorry. No, go to 10 to 37. 10 to 37. Okay. 10 to 37. Okay. Almost there, bro. 33. So I should reach 37 quickly now. 35. No, I think it's 10 3 27, you know. Is it 10 3 Yeah. 27? Okay. Yeah. Just give me a moment. 10. अब हम श्रीमद् भागवतम में जा रहे हैं फिर से। 10 3 27. Okay. Read the translation. Just a moment, Prabhu. 10 3 27 you said, right? Yeah. Yeah. Just a moment. 20. ये 23 या 27 है? हाँ, 27. Yes. Prabhu, the verse Mrityu, Yes. that one? Yes. Okay. Yes. You want to read, Mataji? Yeah. इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन 4 नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों न भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। पूर्ण शांति मन, पूर्ण शांति, पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। करेक्ट प्रभु। So how to do that? कैसे कर सकते हैं? By taking shelter of Krishna. कृष्ण जी के शरण में आके। Yes. हाँ। Yes.
This is not what I'm saying. It is spoken by Devaki, mother of Krishna. ये जिसने बताया है ये श्लोक, ये देवकी बोल रही हैं, कृष्ण जी की माता. We have a Devaki here also, but she's 7. That's 1114 Bhagavatam. 1114. Okay, bro. I'll go there. फिर से हम भागवत में जा रहे हैं. पहले कैंटो में, पहले चैप्टर में, and we will go to the 14th verse. आपन्ना संस्कृति प्रभु. Correct. Apana samsritim goram. Okay. Read that. कोई Translation. पढ़ना चाहता है? कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है कोई? जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है. हरि बोल. So? तो? That answers the question. आपको प्रश्न का उत्तर मिला? जी गुरुजी, जी प्रभु जी. Yes, she says. So next question. Yes, Prabhu. So the next question is, for myself, I want to know what can help me to stay neutral or less reactive. Meditation is one way, as everyone says, but I always struggle to cut down the thoughts while during meditation. If Prabhuji can explain new ways, it will be helpful. Can you go to Bhagavad Gita 6:12? Yes, Prabhu. अब हम भागवत गीता में जाएंगे, छठे अध्याय में, chapter 6, and we will go to 12, verse 12. Go to the purport. Verse 12, Prabhu, right? Yeah, last purport to the end. Just a to moment. To the end of the purport. I just want to confirm the verse, the Tatre Kagram, that one. No, yeah, go down to the purport, right to the end. तात्पर्य के end में जाएंगे. Yes. Yeah. Can you see that word? Hare Nama, Hare Nama. Yes, Prabhu. Yes, I can see that. Can you read that? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam kalo nastyev gati ranyatha. Can you read the translation? कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है. कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है. कोई दूसरा मार्ग नहीं है. There is no other way. कोई दूसरा मार्ग नहीं है. Prabhu, what is a dambh? Prabhu is asking the meaning of dambh. Kalah or dambh. He's asking the meaning of the word dambh. कोई है जो हिंदी? अक्षय, can you translate that to English? I think it's hypocrisy, right? Quarrel and hypocrisy, kalah and dambh. In this Kali Yuga, where the iron age of quarrel and hypocrisy, there is no other way of realizing God other than chanting. इस कलयुग में भगवान को समझना, उसका कोई भी और उपाय नहीं है, सिर्फ चैंटिंग ही एक उपाय है, हरि का नाम लेना. And meditation means meditating on Krishna. और मेडिटेशन का मतलब है भगवान के ऊपर मेडिटेट करना. Not you sit down in corner and you daydream, that's not meditation. आप किसी कोने में बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो मेडिटेशन नहीं होता. You go to Bhagavad Gita text 14, 6:14. 6:14. Okay. Yeah, on the same chapter but 2 verses down. Yes, Prabhu. Prashant Atma Vigat. Yeah. That one. Yeah, Okay. yeah. So you see in this verse, the translation,
कोई पढ़ना चाहता है? Shama, do you want to read this? Are you comfortable reading Hindi or not that much? योगाभ्यास Yeah, करने I'll वालों try. को चाहिए Yeah. Yes, someone is reading. Can we allow Shama to read that? She was the one who asked that question. If you can kindly allow. Yes, Shama, please go ahead. योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। Very good. इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरि बोल, कितना अच्छा पढ़ा, you read it so nicely. मेरा चिंतन मनो है. So my thought, the Lord's thought. Yes, not on any nonsense. कि न कि आप किसी और चीज के बारे में मेडिटेट करें, भगवान का चिंतन करें। This nonsense meditation will not work. तो ये ऐसे बेकार की जो योग साधना में आप जा रहे हैं, जहाँ पे आप वो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। The best way to think of Krishna is to chant this Hare Krishna Maha Mantra. और कृष्ण जी को सबसे आसान तरीका याद करने का है महामंत्र को चैंट करना। In Kali Yuga, you cannot do anything else. कलयुग में और कुछ करना बहुत मुश्किल है। That's why you say you tried meditation, is not working. इसलिए आपने जो मेडिटेशन ट्राई किया वो जल्दी काम नहीं करता है कलयुग की वजह से। Yes. हाँ। Understood. Yes. So you do what is recommended by God, it will work. तो आप वो कीजिए जो भगवान ने खुद निर्धारित किया है, फिर उसका फल मिलेगा। When you try to speculate, then you get into trouble. आप अगर अपने मन से सोचेंगे तो फिर मुश्किल आएगी। You can go 16:23 Bhagavad Gita. Yeah. We'll go to chapter 16. 16वें अध्याय में जाएंगे हम और 23वें श्लोक में। You go to the last verse, then go one up. Yeah. Go completely last because it's the second last verse. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I am almost there now. Yes. So you can read this verse. She can read. क्षमा, आप पढ़ेंगी इसको? और बड़ा करूं मैं? नहीं, काफी है। हाँ, पढ़िए। जो शास्त्रों, हाँ, ये जो शास्त्रों के आदेशों, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। So if you don't follow the Shastra, then you cannot get perfection, no peace, no the supreme destination. अगर आप शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो आपको न तो सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न परम गति, द फाइनल डेस्टिनेशन, वो नहीं मिलेगा। So next question, is that clear? ये क्लियर है? Thank you. Hare Krishna. Yes, Prabhu, that is clear. The next question that came in was not really a question, but more an expectation that how do we get peace of mind and guidance on how to be positive in the pandemic situation. I think a lot of things that you explained already covered that, but in case you want to add something, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, you can go to take 266 again, Bhagavad Gita. 266. Okay, bro. Just a moment. I just close this one. अब हम दूसरे अध्याय में जाएंगे. We will go to 266, which is almost the end of the verse. So I will go to 72 and then I will come back to 66. Yes, Prabhu. Nasti buddhi, that one? Yeah, again you can read. Yeah. Translation. कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है? इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और just hold on. 66 Prabhu, you said, right? Correct. Right. Prabhu, ये जो कृष्ण भाव
भावनामृत ये वाला ही आप पढ़ रहे हैं या कौन सा पढ़ रहे हैं आप तात्पर्य ट्रांसलेशन? तो यही था प्रभु, यही है। हाँ पढ़िए जो पढ़िए। कृष्ण भावरतम में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? हरि बोल, हरि बोल। So if you want to get peace, you must get connected to Krishna. अगर आपको शांति चाहिए तो कृष्ण जी से संबंध बनाना पड़ेगा। So how to get connected to Krishna? By chanting. कैसे कृष्ण जी से संबंध बना सकते हैं? उसका जप करें। By chanting. Yes. Yes. हाँ। Because peace is not your property. क्योंकि शांति जो है वो आपका अधिकार नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो। Peace, Ananda, God is called Satchidananda. भगवान को सच्चिदानंद बोला जाता है। Because he has all the Ananda. क्योंकि उनके पास सब आनंद है। So if you want Ananda, you must go to him. इसलिए आपको आनंद चाहिए तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। You cannot go and buy in your shop, no? आप दुकान में जाके नहीं खरीद सकते। Can? कर सकते हैं? No. That's why the yogis, they meditate on the Lord in the heart. इसलिए योगी भगवान को याद करके साधना करते हैं, meditation with the Lord in their heart. Therefore they chant. When they chant, they are connecting to God. इसलिए वो जप करते हैं। जब वो जप करते हैं तो उनका भगवान से संबंध संबंध जुड़ता है। Therefore, when you chant Krishna's name, because Krishna and his name are non-different. इसलिए जब आप कृष्ण जी का जप करते हैं, उनका नाम और उनके रूप में कोई फर्क नहीं है। That's why you immediately get happiness when you chant his name. इसलिए जैसे ही आप जप करते हैं, आपको खुशी मिलती है तुरंत, immediately. Correct? सही है? Correct. Absolutely correct, प्रभु। So how you want to become happy without God? तो आप कैसे बिना भगवान के आप कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं? So therefore you get COVID. इसलिए कोविड आता है। So your choice. You want to get COVID? You want to chant the COVID mantra? Or you want to chant Hare Krishna mantra? आप क्या मंत्र जप करना चाहते हैं? कोविड मंत्र जप या आप हरे कृष्णा मंत्र जप करना चाहते हैं? Your choice. आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या चाहते हैं? Yes. हाँ, ना, agree, disagree? Agree. Next question. हाँ, आई थिंक प्रभु अभी ये क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। मैं चैट में जा सकता हूँ या लोग अपने क्वेश्चन बोल सकते हैं। अक्षय, जस्ट एक हेल्प चाहता हूँ। आपने देखा कुछ चैट में ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। what is the glory of a Ekadashi fasting in the Vaishnava life? No. We want to finish this. Wait. We want to finish this. Yeah. We finish all this here? Yes, I think Prabhu, we have finished. We had 7 questions that had come beforehand. So we have finished those. अन्य भक्त हैं तो अन्य भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। विश्वजीत प्रभु, आप थोड़ा रुक सकते हैं? अगर और कोई भक्त है जो आज सबसे पहले क्लास में आए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, तो वो सबसे पहले अपने प्रश्न पूछें प्रभु से। So now with all these questions, I've answered this. Anybody have any further questions on this subject? हाँ, किसी के पास और सवाल है? जो प्रश्न के उत्तर प्रभु ने अभी तक दिए हैं उस पे ही कोई लीडिंग क्वेश्चन या कुछ और सवाल है किसी का? Yes. Prabhu, I have a question. Yes, please go ahead, Mataji. Prabhu, we read that krodh, anger, is a gate to hell. So Yes. the solution is also we connect to devotional service and become the devotee of the Lord. But how long does it take to get out of our anartha?
How long to take to get out an anartha? That depends on how you practice your spiritual life. हाँ, मैं एक बार I'll just help to translate the question Yes. and Prabhu what you said. So what जो माता जी कह रही हैं कि हमको प्रभु के संबंध में आना तो है, मगर कितना समय लगता है इस चीज को Prabhu, can I translate my question? Yes, Prabhu. Sorry, Please go ahead. yeah. So मेरा हरे कृष्णा, मेरा प्रश्न है प्रभु से। हमने देखा कि क्रोध से हम नरक में जाते हैं, क्रोध एक नरक का द्वार खोल देता है हमारे लिए, तो हम इससे कैसे बचे? इसका जवाब हमें प्रभु जी ने बताया था कि हम भक्ति जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि कितना टाइम लगता है हमें अपने क्रोध से या अनर्थों से बाहर आने के लिए? यह मेरा प्रश्न था प्रभु से। और उसके जवाब में प्रभु ने जब स्टार्ट किया बोलना, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये डिपेंड करता है आपके आध्यात्मिक जीवन आपका कैसा है, कैसे आप जी रहे हो अपना आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ आर यू लीडिंग इट? यस प्रभु, बैक टू यू। So unless a person, practice this very seriously and strictly, जब तक कोई मनुष्य सीरियसली आध्यात्मिक जीवन को फॉलो नहीं करता, then yes, he will go above the three modes of material nature. अगर सीरियसली फॉलो किया जाए तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। 14:27 Bhagavad Gita. Okay, Prabhu. No, sorry, 14:26. 14:26. Okay. Prabhu, the mam cha yovya. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Do you want us to read the translation, Prabhu? Yes. कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है? कोई जो डिवोटी? समस्त परिस्थितियों में ओके प्रभु, गो अहेड। जो समस्त परिस्थितियों में अवलिचित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रगति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। So the moment you practice spiritual life unfailingly, then yes, you will overcome these three modes of material nature. अगर आप आध्यात्मिक जीवन डिसिप्लिन के साथ चलाएंगे तो आप ये तीनों मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के ऊपर उठ सकते हैं। Now you're talking about giving up anger. That's not possible, huh? आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्रोध का त्याग कर दें आप पूरा, तो ये संभव नहीं है। But how you give it up? By exercising your anger on people who are against Krishna or the devotees. Prabhu, can you re-explain that one so that I translate the last line? You exercise your anger towards people who are envious of Krishna and the devotees. अगर आप अपना क्रोध उस तरफ ले जाएंगे जो लोग कृष्ण जी के भक्त नहीं हैं, So that is the proper way of engaging this anger. तो ये सही तरीका है अपने क्रोध को यूज करने का। You understand? But if you use this anger for yourself for your sense gratification, that is not correct. लेकिन अगर ये क्रोध को आप अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। हमें क्रोध को भक्तों के और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत व्याख्या करते हैं उनके प्रति यूज करना चाहिए, है ना प्रभु? Yes, thank you. ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। Yes. So therefore we must learn how to apply all this in proper perspective. इसलिए ये सब चीजों को हमको प्रॉपर तरीके से कहाँ पे कैसे उसका यूज करना है वो जरूरी है सोचना। We have to learn that from our spiritual master. वो चीजें हमको अपने गुरु से सीखना होगा। Then yes, we will succeed in spiritual life. फिर हमको सक्सेस मिलेगी अपने आध्यात्मिक जीवन में। Hanuman used his anger against Ravana.
हनुमान जी ने अपना क्रोध रावण के विरुद्ध इस्तेमाल किया। Correct? सही है। So that is, Chaitanya Mahaprabhu used his anger in Jagai and Madai. चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई के लिए अपना क्रोध इस्तेमाल किया। Yes. हाँ। Yeah. So this we have to learn. ये हमको सीखना पड़ेगा। So the devotees are the only one who can curb this anger. जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, वही क्रोध को संयम में रख सकते हैं। 11, Yeah. 22, 61. प्रभु सु दुसहम इमम, that one? Yeah. Can you read the translation? कोई पढ़ना चाहता है शब्दार्थ ट्रांसलेशन? हे विश्वात्मा हे विश्वात्मा, हे विश्वात्मा, मनुष्य का भौतिक जीवन में बंधन अत्यंत प्रबल है, अतः अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए अत्यंत कठिन है। केवल आपके वे वक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरत हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम हैं। हरि बोल। हरि बोल। So can you go to 11:23:2? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I am there. Translate. Devaki, you can read. यस प्रभु। श्री कृष्ण ने कहा, हे बृहस्पति, शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। हरे कृष्ण। Yes. Correct. So the only way to handle this is to take shelter of Krishna's lotus feet. एक ही तरीका है इसको संयम में रखने का, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आने के। So the more and more we chant, the more and more we become peaceful in our mind. जितना ज्यादा हम जप करते हैं, उतना हम मन में शांति का अनुभव करते हैं। And we become very tolerant also. और हम और भी टॉलरेंट हो जाते हैं। But someone who's insulting, it's very difficult to tolerate, no? लेकिन कोई अगर आपका अपमान कर रहा है तो उसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता है। If we can tolerate, then yes, very good. But this is all by test and practice. ये सब चीजें टेस्ट और प्रैक्टिस से ही आती हैं, कैसे संयम करना है। We are surrounded by envious people. They'll always be saying so many nonsense. हमारे चारों ओर मनुष्य रहते हैं जो जलते हैं, बहुत सी बेकार बाकी बातें करते हैं। Cannot close their mouth. अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते। I cannot control their mind, but at least I can control my mind. उनके मन को मैं काबू में नहीं कर सकता, मगर अपना मन तो काबू में कर सकता हूँ। Yes, that's why in the Bhagavad Gita, Krishna says, प्रभु जब प्रभु डिवोटी की तो इज्जत ही नहीं होती तो सिर्फ बेइज्जती की होगी। He's saying to 11, I'm sorry, Bhagavad Gita, chapter 2. Okay. Yes, Prabhu, I'm on chapter 2. Which shloka do you want me to open, Prabhu? It is says here in chapter 2 text. Which one, Prabhu? Give me a minute, huh? Yeah, no problem. No problem. You must see the Sanskrit. Yeah, it's chapter 2, text 14. Chapter 2, text 14. Okay.
you want us to read the translation, Prabhu? Just the translation. Yeah. हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। So therefore we have to be very tolerant. Yes. इसलिए हमको बहुत संयमशील होना पड़ेगा। In fact, to chant Hare Krishna, Trinada api suni chena, taro api sahi suna. You know, we have to learn how to be lower than the straw in the street, more tolerant than the tree. इसलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र का महामंत्र का जाप करते हैं तो हमें अपने आप को बहुत ही हम्बल और मॉडेस्ट होके समझ के फिर वो चैंटिंग करनी पड़ती है। Yes. Lower than the straw in the street. That's another prayer प्रभु ने बताई जो हम चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ी थी कि आप जो सड़क पे जो घास है, घास के तिनके से भी नीचे अपने आप को समझें। So this is possible by practice. Huh? ये सब प्रैक्टिस से संभव होता है। So please be patient. What to do? तो इसलिए आप धैर्य रखिए, संयम रखिए। Yes. Yes, bro. Once somebody asked about his mother, some question is there. What should she do for the remainder of her life to be able to do niskam karma? So you tell her that the best thing is to chant Hare Krishna. निष्काम कर्म कैसे किया जाए बाकी जीवन, बचे हुए जीवन में सबसे अच्छा तरीका है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। So the best thing is to just become a devotee of Krishna and chant Hare Krishna, whether you are old, young, anybody, they start immediately to chant. Their life will become successful. Yeah. आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करें, जप करें, इससे आपका जीवन सफल होगा। Yes. There's no other way in Kali Yuga. और कोई तरीका? What is that verse just now? Nasteva in Hindi. What do you say? What do you say in Hindi? There is no other. और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। कोई तरीका नहीं है। Three times. Yes. प्रभु और कोई विकल्प नहीं है। In Hindi. So therefore, कोई और विकल्प नहीं है। So therefore, we just have to learn how to be a devotee of Krishna. That is the conclusion. सिर्फ इसलिए जो तात्पर्य है कि हमें कृष्ण जी का भक्त बनना पड़ेगा। 761 in Bhagavad Gita, Prabhu? 761? Bhagavatam 761. Okay, 761. I'll go there. 76. And we are there. Yes, Prabhu. Do you want someone to read the translation? Yes. कोई पढ़ना चाहता है? प्रहलाद महाराज ने कहा। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरि बोल। So
I think I have answered all the questions. Yeah? तो प्रभु ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है. Everyone is clear? सब क्लियर है? Yes. It's already 10 o'clock. Yes. Prabhu, if you allow, we will just take a few minutes to do a vote of thanks. Can we do that? Yes. Yes. दीपान्विता माता जी, आप अभी भी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? जी। We want to do a short. मैं बोलना चाह रही हूँ कि आज मेरे मन को बहुत शांति मिल गई है. प्रभु जी का बात सुनकर लगा कि हाँ, मेरे दिल का ही बात प्रभु जी कहे हैं. और मैं जो बीच बीच में ये पागल हो जाती हूँ, वो लगता है उसका रास्ता मैं आज मुझे मिल गया. इसीलिए प्रभु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम. भगवान श्री कृष्ण के चरण में मेरे बहुत बहुत प्रणाम. मैं भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता पाठ करती हूँ. रोज ही कोशिश करती हूँ थोड़ा सा पाठ करे, थोड़ा सा ही पाठ करे, लेकिन करे. हाँ, उससे भी मेरे को बहुत शांति मिलती है. और आज 2 घंटा कैसे जो बीता है, हमको अपने ये नहीं रियलाइज नहीं हो रहा है. हम बहुत शांति मिला हमको. इसीलिए थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. बहुत बहुत आपका आभारी हूँ मैं. Thank you so much. No, Deepanvita will help translate. Deepanvita, do you want to translate what your mom said? Sure. Prabhuji, what my mother is saying is that she, after sitting here for 2 hours, she did not realize how this time passed by, and she's finding a lot of peace in herself. At times in this situation or otherwise, she is at times getting a bit depressed or confused. But now she thinks she has found a way to remove all those confusion and depression from her own life by chanting Hare Krishna. And she has a habit of reading Bhagavad Gita. She tries to do it regularly, but after this session, she is more inclined towards reading it on a regular basis and feels that it will keep her mind in the right path and direction. So this is the result of proper association. Can translate that? ये तभी आता है जब आपको सही संग मिलता है. So when you get the right connection, then you get the right answers and you will get to become free from all doubts. जब आपको सही संदर्भ मिलता है, तो फिर आप सारे जो भी मन में, जैसे माता जी ने कहा उनके मन में पजल था, वो सब पजल खत्म होता है, फिर आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है. So association is very important. इसलिए संगत बहुत जरूरी है. So I advise your mother to come regularly to this session and just join us to chant Hare Krishna, and she will be definitely find herself most happy. इसलिए आप माता जी को बोलें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्लासेस में आए, और जरूरी उनको बहुत खुशी मिलेगी. All our devotees are conducting regular classes here. You can always join it, and then that's it. You get more strength. Yeah. In fact, Prabhu, if I may say, Deepanvita and her mother, they were also interested in attending the Bengali class because they have some connections with Bengali as well. So, of course, you can join the Bengali class. We are doing it on Tuesday in the evening. So, Deepanvita, मैं आपके साथ details share कर सकता हूँ. No, on Thursday we are having a Hindi class again, no? Thursday we are having a Hindi class again. Yes, Akshay Prabhu will give the details, and we can combine the groups. Appropriate for them, no? They have more Hindi speaking people, correct? And yes, I recommend you to read Prabhupada books. You know, that's most important, no? प्रभु कह रहे हैं सबको कि आप श्रीला प्रभुपाद की किताबें पढ़ें, वो बहुत जरूरी है. You must read Prabhupada's Bhagavad Gita. You cannot read any other Bhagavad Gita. आप श्रीला प्रभुपाद की जो लिखी हुई भगवत गीता है उसको पढ़ें. आप किसी और की भगवत गीता इधर उधर की आप नहीं पढ़ सकते.
And I think if you have that, it's good. If you're not, you can order from them and they'll send it to you. आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो जैसे अक्षय प्रभु ने बताया, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं. Yes. हाँ. Anybody else want to say anything? और किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रकट करना है, कैसा लगा, नहीं लगा, कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण. Yes, Prabhu, go हरे ahead. कृष्ण. Yes, Prabhu, go ahead. मैं भरत पहली जी बार, बोलिए. हाँ जी, पहली बार ये क्लास ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा. और कुछ बातें जो बरसों पहले मेरे दादी माँ कृष्ण भक्त थी, वो हवेली में जाती थी, तो वो सब बातें मुझे ऐसा लगा कि ये सब रिपीट हो रही है. वो सुना था बचपन में जो कि जो दान करते हैं तो कृष्ण अर्पण कीजिए, और भी थोड़ी थोड़ी बातें थी. हाँ, हरे कृष्ण. भरत जी आप और बोल सकते हैं. मैं जस्ट ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ मिस नहीं करूँ. So प्रभु Bharat ji is saying that after many years he joined this kind of a class and he felt very good. He got reminded of some stories that he had heard from his grandmother when he was small. And the example of what you mentioned, that whatever we give in charity, we should actually give it to the Lord. So this is something that he got reminded of. So thank you so much. भरत जी और कुछ कहना चाहते हैं आप? और है कि जो कलयुग है उसमें एक ही बात है कि कृष्ण का नाम लीजिए. वो बोलते रहते थे, वो भी मुझे याद रह गया. So he's saying that he now remembers his grandmother saying that in Kali Yuga, the only way to do it is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. So he got connected. He remembered that is also something that she used to say. So he has to now do it, no? तो अब आपको करना है प्रभु जी, वो हाँ जी, अमल करना है उस पे. हाँ जी. Reminder is one thing, but to now to do is most important. हाँ, याद करना एक बात है, मगर अब करना वो ज्यादा जरूरी है. उस पे अमल करना पड़ेगा. Yes, especially if you are in Delhi, it's dangerous. खासकर अगर आप दिल्ली पे हैं तो बहुत डेंजरस है. You can die. मैं गुजरात से. Oh, Gujarat. Okay, you are a little safe. Anywhere you go, you can die, you know. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Anyone else wants to say anything before we end? Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. Akshay Prabhu. I think I've shared with you on WhatsApp. So if you can kindly share your screen and show them that post, Prabhu. Yes, Prabhu. Can you just do a that? minute? Yeah, Prabhu. I'll open up. This one, Prabhu, to join and buy the Bhagavad Gita books. One. Yes. Yeah. Which one, Prabhu, do you want me to show? Should I scroll up? I think it's just one poster. If you can just show that. It's on WhatsApp. I'm actually dialed in from my computer system. So let me see my WhatsApp chat. Are you able to put that on the chat? Which link are you? Yeah, give me just 2 seconds, Prabhu. Yeah. Because I think I'm on my laptop. I won't be able to. You are saying अपनी स्वयं को भगवत गीता पाने के लिए कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप संदेश भेजें या कॉल करें. Okay. So let me just try to translate. Please send your message on. You want me to type the phone number, Prabhu? Yeah, if you can kindly tell them the phone number so they can contact.
This is Amit Send your- Vashisht Prabhu. Please send your message on WhatsApp at, am I writing the right number, Prabhu? If you can check 8588084001. Yes, that's the one. तो आप That's the सभी one. देख सकते हैं आज के क्लास का तात्पर्य ये है कि शिला प्रभुपाद की किताबों से आप निर्देश लीजिए, सीखिए, और ये सबसे अच्छा आपके पास मौका है कि आप भगवत गीता अपने घर पे मंगा के खुद आरंभ कीजिए। जो आपके प्रश्न आते हैं वो आप क्लास में पूछिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, उतने आपके मन में प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न आप प्रभु से पूछिए, उसका आपको पूरा तुरंत लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अगर आप नंबर एक बारी और दोहरा सकते हैं प्रभु तो। हाँ, नंबर मैं दोहरा रहा हूँ 8588084001। जी, और इसका व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा हमारे क्लास के, तो उस पे भी आप ये सारे मैसेजेस क्लास के रिगार्डिंग किस समय पर क्लास हो रही है, कौन क्लास दे रहा है, और ये सारे मैसेजेस किताब से संबंधित सारे मैसेज आप वहां पे देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So Prabhu, thank you very much. Huh? Yeah. Hare Krishna Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna to Vancha all. Prabhu. Stay safe. Thank you, Prabhuji. Thank you all. Hare Krishna to all. Hare Krishna Hare Prabhuji. Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu.